Well, when we are talking about the MPSC is the constitutional body, as you all know, right? MPSC is the constitutional body which is responsible for recruitment under for the government of Maharashtra posts. Okay? So I hope everybody is comfortable with Hindi, Marathi, English. So you need not to be completely in English or completely in Hindi or Marathi, whatever, right? So MPSC is a constitutional body which is responsible for the recruitment for the posts in the under the government of Maharashtra. Right. Now, this body recruits the officers for various different posts. Right. Different posts they recruit for. The highest examinations are the civil services examination, through which the deputy collectors, Tehsildar, Nayab Tehsildar, the police commissioners, assistant police commissioners, all these posts are filled, right? After that, the mining services, this what for which we are competing for, right? The mining services that comes also under the MPSC. So for DGM, that is Directorate of Geology and Mining, they have recruitment to the MPSC themselves. And this year, MPSC has announced 10 posts through the MPSC has announced 10 posts for the DGM, right? Also, around 80 to 90 posts in GSD, right? Both for junior geologist as well as the assistant geologist, right? Both inclusive of this, right? Now, let us first take a look on the examination. What examination is all about, right? What is this examination is all about, and what is the syllabus of this examination, right? अभी exam क्या है? ठीक है? What is this exam? Simply, the exam is nothing but an objective exam, right? The objective exam. Earlier, this objective exam used to be in the pen and paper method, just like UPSC. Many of you have appeared for might have appeared for UPSC pre-exam, just occurred last Sunday, right? So it used to be like pen and paper method. They used to give us the OMR sheet, and you have to fill the circles, darken the circles, and give the answers, right? Just a second. Just a second, I'll be back. Okay, I'm sorry for the disturbance. So earlier it used to be the pen and paper method, but now for this year, okay, for this year, MPSC has announced the online test. Okay, they will be having the online test. So this in case of online test, the as the GATE is concerned, right? Like GATE, this test will be occurring, right? Okay, so this is the exam, right? Now, the overall structure of the exam, right? As MPSC has given us, right? The MPSC has given us the structure of the examination. Total marks are going to be 200, right? Total marks are going to be 200, for which you need to answer
100 questions, right? For 200 marks, you need to answer 100 questions. That means for one question, you will be awarded 2 marks, right? For one question, you will be awarded 2 marks plus they will have negative marking scheme. So minus 25%, right? Minus 25% means one question, if your one question is going wrong, minus 25% will be 25% will be deducted from the overall score of your examination, right? So this is overall the structure of the examination. Okay, this is overall the structure of examination, right? Now, coming to the syllabus, in the syllabus, they have included some of the things which are very much important to the organizations which we are aspiring for, right? We are aspiring for hydrogeologist, that means GSDA. Okay, we are aspiring for DGM. So they have given us the syllabus which is relatable. Okay, the syllabus which is relatable, or the syllabus which is relevant with these topics only, right? With these topics only. So in the syllabus, they have given much emphasis. They have given much emphasis on the hydrogeology portion, right? They have given larger emphasis on the hydrogeology portion as well as watershed management, which is not even covered in UPSC separately. Okay, there's a part of hydrogeology paper of UPSC, the paper 4, right? UPSC have 4 papers in mains, basically. Okay, in UPSC mains, we have 4 papers: geology paper 1, 2, 3, and hydrogeology. So in case of hydrogeology, we have entire hydrogeology as well as watershed management as an included portion. But here in MPSC, they have given us separate portion on watershed management. Okay, so 2 crucial parts in the in case of the hydrogeology paper or the MPSC paper is that hydrogeology, right? The most crucial parts are the hydrogeology, number 1. Next, watershed management, right? These are the two these are the 2 most crucial parts which are present in the MPSC paper. After this, remote sensing, right? Remote sensing. Now, in the MPSC syllabus, they have clubbed remote sensing with geomorphology. Okay, so remote sensing plus geomorphology. So both these subjects, both these topics will have equal weightage. Okay, but yes, remote sensing is also a crucial part, right? Nowadays, many of the things are being done by the remote sensing and GIS only. Okay, so this remote sensing and geomorphology. After that, they have given stratigraphy of Maharashtra. Okay, the stratigraphy of Maharashtra. Whatever the stratigraphic units are. In UPSC, we have to study the stratigraphy of entire nation, okay, entire India. But in case of the in case of MPSC, we have to go for stratigraphy of Maharashtra only. Okay, so stratigraphy of Maharashtra only. So whatever the units are, all the units will be studied in the light of Maharashtra. Okay, so whatever the litho units are, say it is peninsular gneisses, say it's Amgaon gneisses, say it's Deccan basalt, right? Or any of these things, even Gondwana, right? All these units, all these litho units will be studied through the perspective of Maharashtra. Wherever in Maharashtra they are located, right? Wherever in Maharashtra they are located, what is their characteristics in Maharashtra itself, right? And the most dominant thing in this will be basalt.
right? The Deccan Basalt. Since we are living in the Deccan Plateau, right? In Maharashtra, we are living in the Deccan Plateau, and then the majority of the thing is covered by the basalt itself. So basalt will become a crucial factor for the stratigraphy of Maharashtra. After this, they have given structural geology. But a structural geology, which is given here in this syllabus, right? Structural geology, which is given here in this syllabus, is very much what I can say is very much a simple level. Okay, they have not included much larger concepts like stress strain. They have not given more emphasis on the stress strain portion. Yes, obviously we will be going through that. Okay, but majority of the things are given by these given are these like fold, the type of fault, type of unconformities, all these things, right? And petrology, okay, in which igneous, sedimentary, metamorphic, all these three topics are included, right? All these three topics, all these three subjects are included. Okay, so whatever the detailing of this petrology is, we'll be going through this this petrology modules, right? So this is the portion, right? This is the portion. The geology portion. Okay, this is the geology portion, which is prescribed in the syllabus by the MPSC, right? This is prescribed by the MPSC itself. Now, in MPSC syllabus, there are two more things, two more columns, right? You might have observed there are two more columns. The first column says in the syllabus itself, okay, the first column says there should be knowledge to the candidate for the current affairs and general studies, right? General studies and current affairs, right? Here in this class, we are not going to take these current affairs portion, right? But then there is something more, which is called as RTE, Right to Information Act. Okay, Right to Information Act. We are going to study RTE in detail. Okay, but in the end of the class, right? The end of the class. So RTE is important, current affairs is important. Okay, current affairs and RTE, they will constitute almost 10% to 15% of the paper, right? 10 to 15% of the paper, like 10 to 15 questions approximately, right? Approximately 10 to 15 questions from this current affairs as well as Right to Information Act, and rest of the questions will be from the geology portion. So the larger portion of the paper will be of geology part. So do not take much load. Okay. Do not take much load of all these different aspects, that how will we study about the current affairs, how will we go for the RTE, because these are the acts, this is basically the governance topic, right? This is the governance topic, and we are not that fluid, that much comfortable in the governance, the legal language basically, right? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है गवर्नेंस, पॉलिटी, ये सारी चीजें पढ़ने में, that we don't know the legal language. Okay, we don't know the legal language, and when we don't know the legal language, these kind of documents, reading these kind of documents becomes a nightmare for us, right? In such cases, okay, in such cases, just leave these documents aside, right? Leave these documents aside. Do not go for any detailing of this. Whatever the detailings of this RTE Act, RTE 2005 Act, I'll be taking this in this class itself. Don't worry about this, right? Okay, so I hope you have understood the structure of the examination and the syllabus of the examination. Can you please confirm? Anybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Pranav sir, current affairs किती जुना करा लागेल? Near about 6 months, 1 year. Almost 1 year. Okay.
करंट अफेअर्स तुम्ही 1 वर्षाचे करून ठेवा, that is enough. Okay, you can go through the scanners, those scanner books which cover the entire year. Okay, or you can go for monthly magazines, right? तुम्ही मंथली मॅगझिन वाचू शकता, तुम्ही एकत्र एक पुस्तक येते, ठीक आहे, वर्षभराचं एक पुस्तक येईल, त्याच्यामध्ये ते वाचू शकता, किंवा तुम्ही व्हिडिओज बघू शकता. व्हॉट एव्हर you are comfortable in, right? Whichever method you are comfortable in, you can go for that, right? Plus RTE. Okay, don't forget RTE. 2 questions are fixed from RTE. Sir, current affair related to India or Maharashtra specific? नहीं. The current affairs are current affairs. It is not related to any state or any territory. They are current affairs, entire world, or India or Maharashtra. They can ask anything. Okay, so in current affairs, they can ask the Nobel Prize winners, right? They can ask the Nobel Prize winners. They can ask the Golden Globe Award winners, or anything like that. Okay, anything like that. So you cannot restrict current affairs to any territory or any state or any country, right? Okay, sir. Okay. I'll show you the question paper. Okay, I'll show you the question paper, which is of 2013 GSDA, right? Because that is the only question paper available. Past question paper के नाम पे वही एक question paper available. Okay, in the MPSC site basically. See this. Is it visible? Yes, sir. Okay. So this paper, okay, this paper is for the junior geologist as well as assistant geologist. Okay. So you can see this. This was 2013 paper. 2013 paper. This is the current affairs portion or the general studies portion, right? The general studies portion, like the center has denied funds to largest irrigation project in the state of Maharashtra. Which project is this? Okay, you can go through this. Okay. See, current affairs, yeah, paper मध्ये current affairs आहेत, all these current affairs are 10 years back, right? So they are not at all current affairs right now. Okay, so don't compare this with today's current affairs, right? Do not ever compare. Whatever current affairs will be, they will always change. Okay. See the extent of current affairs, right? The extent of current affairs. See question number 6. Okay, see the current affairs 6. Who is the co-owner of the Rajasthan Royals team who has been called for questioning in an IPL spot fixing case? Is it having something to do with geology? No, right? But they have asked such questions, so they are basically testing your overall awareness of your surroundings, basically, right? Nothing more than that. So here in this paper, okay, in this paper, 10 questions are asked. Okay, 10 questions are asked from the
current affairs portion and the right to information. Like this, question number 10, right? The right to information. Okay, the right to information acts as the brake on the abuse of powers of public officials and all this. Okay, so you need to go through these RTI. Okay, you need to go to the RTI properly to answer these questions, right? Okay. Then see, I was talking about the importance of hydrogeology. The first questions or the starting of the paper is through the hydrogeology itself, right? So the hydrogeology itself, like this. Darcy's law does not express the flow through the porous media. It's true, false, whatever. Okay. Then fill in the blanks. The zone of saturation. Then here the watershed is asked. Okay. So these are the questions. You can go through this. I'll upload this paper. Okay. I will upload this paper in the app today itself. Okay. We have our own app, you know, the Renaissance Academy app. You can download it from the Play Store directly, or if you are having the link, you can download it from the link itself. Right. Now, about this class, right? About this class, you have joined the class for the MPSC, right? Now, this class will run daily for 45 days, right? For the 45 days. In this coming 45 days, okay, in coming 45 days, what we are going to study? We are going to study line by line the syllabus of MPSC, right? The syllabus of MPSC line by line. Whatever the MPSC syllabus is given, okay, whatever is given, we will study everything. We will not leave any stone unturned, right? Right from the hydrogeology, we are starting with the hydrogeology. Okay, we'll be starting from the hydrogeology. We'll first complete the hydrogeology, then we'll move on the watershed management, right? After watershed management, we'll go through the remote sensing portion, right? And then the rest of the portion. Okay, in the rest of the portion. So stratigraphy, then petrology, then geomorphology, right? And the structural geology, of course. So the more emphasis will be on the hydrogeology as well as watershed management on the first 2 weeks, right? In these coming days, you will be studying the hydrogeology. Many of you are studying, you have studied hydrogeology, have studied the watershed management, right? We are giving you the perspective, right? We are giving you the perspective, right? After that, we'll be having tests. Okay, we'll be having the test. We'll be having the test series after the end of the class, end of this batch, right? Now, the videos of these classes, the class are being recorded. Okay, these classes are being recorded, and these videos will be available on the app. Okay, these videos will be available on the app itself after 24 hours. Okay, it has to go through some process. Okay, it has to go through some process, and this process takes time. Okay, so after 24 hours, say today's video will be accessible to you tomorrow. Okay, today's video will be accessible to you tomorrow. Okay, whatever the notes are, whatever notes we are having, we'll upload these notes on the app itself in the PDF format. Okay, you can read the notes from there itself, access the notes there itself, right? Okay, so this is overall structure of this class. Okay, every day we'll meet at 6:30. Okay, no holidays until and unless they are stated. Okay, we are infamous for giving holidays. Those who know us previously, okay, those who know us previously, हम लोग कभी भी हॉलीडेज नहीं देते. जिन्होंने हमारे ऑफलाइन क्लासेस किए हैं, हमारे ऑनलाइन क्लासेस किए हैं इसके पहले के, दे नो अस वेरी वेल कि हम लोग कभी भी छुट्टियां नहीं देते. ठीक है, छुट्टियों के नाम से हमें एलर्जी है बेसिकली. सो हम लोग छुट्टियां कभी देते नहीं है. सो ठीक है, 45 days and this syllabus and you guys. Now the most important question, right? Most important question. I have paid you 2499 rupees, right? I have paid you 2499 rupees. I have enrolled the class. I'm doing the class religiously. Will I clear the exam? No.
only by joining the class, and sitting here will not fetch any result. You need to study by yourself on also, right? After the class, you need to study. Okay, after the class, you need to study. We are here to give you the direction. Okay, we'll give you the direction, we'll guide you through the journey, but it is you who have to take the journey alone, right? So आपको पढ़ना पड़ेगा सिर्फ क्लास करके, ठीक है? सिर्फ क्लास करके, सिर्फ क्लास में बैठ के आपका एग्जाम तो नहीं निकलेगा, ठीक है? क्या होगा? You will take the direction. Okay, you will get the direction, you will get the right notes, you will get the right guidance. Okay, we'll make sure whatever is best for you, we'll do this, right? Whatever is best for you, whatever is best for the class, whatever is best for the batch, whatever the best for the MPSC for this exam, we'll do it from our own end, right? But we are asking one support from you. Okay, only one support from you, that you need to study, right? You need to study religiously. Cover the today's topic today itself. Whatever topic we are studying, okay, whatever topic we are starting today, just read the topic from the book, from the notes. Okay, read the topic from the notes, from the books, and try to cover the topic today itself. And whatever the doubts, whatever you have doubts, you can ask us. Okay, ask all the doubts anytime. Okay, so you can ask the doubt in the class, you can ask the doubt after the class itself. Okay, do you have any questions, any queries, anything in mind you want to ask us? Ask me. सर हायड्रोजिओलॉजी साठी कोणती बुक रेफर करायला लागणार? हायड्रोजिओलॉजी साठी टोड. ओके ओके सर, कारण पण आपण रेफर केले तर चालणार का? कोणतं? कारण हा, you can go for that. Current, you can see book whatever you are comfortable in. Okay, whatever book you are comfortable in, I'll recommend to read Toad or Nagbushnaya, HS Nagbushnaya. Okay, why HS Nagbushnaya? Because this book, HS Nagbushnaya, is an extract of Toad, and he has given the Indian scenario. Okay, HS Nagbushnaya has given the Indian scenario. So you can read that book, or for the principles, or for the heavy principles, you can go for Toads or even Current, or even HM Raghunath is good. Okay, thank you, sir. Okay. Anything else? कोणाला अजून काही विचारायचं? सर स्ट्रॅटिग्राफी साठी जीजी देशपांडे होणार ना सर सफिशियंट? स्ट्रॅटिग्राफी जीजी देशपांडे होऊन जाईल. ओके ओके ठीक है सर. सर आई वांट टू ऐड वन थिंग. या, देखो आप लोग बुक्स की चिंता मत करो, जो भी मटेरियल लगेगा विल प्रोवाइड इट. हम स्टैंडर्ड बुक्स भी आपको ग्रुप्स में अपलोड कर देंगे, ठीक है? हाँ सर, मुझे शिफ्ट कर दीजिए. okay, so from here Amit sir will take over and will directly be starting the syllabus, right? Okay, so you are host now, carry on. सही है. बहुत से लोगों को बहुत सारे डाउट्स है, मैं आपको कुछ क्लियरिटी फिर से दे देता हूँ. हम सब लोग क्या करते हैं कि अभी सर ने बताया आपको कि 100 मार्क्स का पेपर है, 200 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चंस है, जिसमें 10 ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे है. तो सबको चिंता जो है वो करंट अफेयर्स की लगी है. ओके, जो कि 20 मार्क्स का है. उसमें से भी आप अगर देखते हो तो 3 मार्क्स का आपके पास क्या है, आरटीई का क्वेश्चंस रहेंगे. जस्ट 1 सेकंड. मतलब एज ए स्टूडेंट हम गलती कहाँ करते हैं कि हमारे पास जो नहीं है पहले उस चीज पे फोकस करते हैं कि सर इसका कैसे होगा. ठीक है, तो इसका चिंता ही मत करो. आप देखो आपके पास 10 क्वेश्चंस है, इसमें से 2 to 3 क्वेश्चंस जा रहे हैं आरटीई पे. ठीक है, ये आरटीई भी कोई छोटा ये नहीं है, ये एक बहुत बड़ा होता है. ठीक है, इसके पीडीएफ ही पढ़ने लग जाओगे आप तो आपको
मतलब ऐसा लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये सब हम प्रोवाइड करेंगे, जितना पॉसिबल हो उतना डिटेल में भी हम जाएंगे। तो 2 से 3 क्वेश्चन इस पे आ गए। तो करंट अफेयर्स के लिए आपके पास बच कितने जाते हैं? ओनली 7 क्वेश्चन। आई एम ऑडिबल है? सबको सुनाई आ रहा है? यस सर। ओके। तो आपके पास करंट अफेयर्स के लिए 7 क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसमें से आप देखोगे तो 3 to 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वे वेरी इजी कैटेगरी के रहेंगे, है ना। वेरी इजी कैटेगरी मतलब क्या होगी कि जो आपका ये है, आप अगर डेली नॉर्मल रीडिंग भी करते हो, है ना, मतलब थोड़ा सा अवेयरनेस अगर आप रखते हो। जस्ट 1 सेकेंड। आप ऐसे नॉर्मल रीडिंग भी करते हो डेली न्यूज़पेपर वगैरह, इससे भी 3 to 4 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। और बचे हुए जो 3 to 4 क्वेश्चंस है ये थोड़े टफ रहेंगे, जिसके लिए थोड़ी प्रॉपर रीडिंग लगेगी। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम आपको जो भी इधर उधर से अवेलेबल कुछ ना कुछ मैगजीन्स होती है जिसमें मंथली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ पीडीएफ्स होते हैं जिसमें इस साल के नोबेल प्राइजेस हो गए, अवार्ड्स हो गए, बुक्स हो गए, इसके बारे में आते हैं। तो वो हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। वो उतना भी आप पढ़ लो तो ये 10 में से आप 5 to 6 क्वेश्चन टैकल कर सकते हो करेक्टली। ठीक है, समझ में आ रहा है? और बाकी तो आपका नॉलेज रहेगा कि जो आप पढ़ रहे हो डेली जितना कर सकते हो। तो बेसिकली इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आपको ज्यादा जरूरत ही नहीं है। आप नॉर्मल जनरल अवेयरनेस रखो, न्यूज वगैरह देखते जाओ, है ना। जो भी इशू जो थोड़ा सा ये आ जाता है, कुछ नेशनल लेवल पे आ जाता है, वो इशू को थोड़ा ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो इससे आपका करंट अफेयर, तो ये 10 क्वेश्चन आप छोड़ दो, ये नॉर्मली इजीली हो जाते हैं। आप फोकस करो बचे हुए 90 क्वेश्चन, जो कि आपको 180 मार्क्स स्कोर कराएंगे, और वही बेसिकली सिलेक्शन के लिए डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, बहुत से लोग हो गए थे कि हम एकदम अंग्रेजों के जमाने के औलाद ऐसे टाइप के हो गए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट यू नीड टू फोकस ऑन मराठी, बिकॉज आपका इंटरव्यू जो है वो मराठी में होने वाला है। सो हर कोई कंफर्टेबल है मराठी में? यस सर। इंटरव्यू आपका मराठी में होने वाला है। अगर वो मराठी में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मराठी में आंसर करना है। तो जिसको भी इशू होगा वो थोड़ा थोड़ा अभी से प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, एकदम प्योर मराठी में आपको क्वेश्चंस किए जाएंगे, आपको मराठी में आंसर्स भी देना पड़ेगा, बिकॉज हमें डोमेस्टिक लेवल पे काम, जब डोमेस्टिक लेवल है, गाँव में है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं ये चीजें। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द करंट अफेयर्स। और कोई डाउट्स है, पूछना है? ठीक है, तो आपको बुक्स भी दिए जाएंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रॉपर गाइडेंस रहेगा। बस ये है कि आप रेगुलरिटी रखिए पढ़ने में भी और क्लास में भी। ठीक है, बिना पढ़े तो होगा नहीं, है ना। 100 सीट्स है, तो ऐसा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे लोग नहीं देते, क्योंकि इसके लिए ओनली महाराष्ट्र के लोग ही दे सकते हैं। तो कंपटीशन जो है वो फ्यू थाउजेंड्स पे आ जाएगा, है ना। जैसे यूपीएससी के लिए लगभग 10,000 स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो एमपीएससी के लिए ये आंकड़ा जो है वो 1500 to 200 के आसपास आ जाएगा सीधा, है ना। तो इतना ड्रास्टिक रिडक्शन है। तो इसमें सिर्फ महाराष्ट्र के लोग एलिजिबल है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जो हर किसी ने एटलीस्ट ट्राई तो करना ही चाहिए अपने अपने तरफ से। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके आप करिए। ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे कि ईच एंड एवरी चीज हो जाए। सिलेबस को स्ट्रिक्ट होके हम चलने वाले हैं पहले। अगर सिलेबस अपना जल्दी कवर हो जाएगा तो अपन और डिटेल चीजों पे मूव करेंगे। ओके, एक्स्ट्रा की चीजें तो पहले तो अपन सिलेबस से कंप्लीट। सो वी आर स्टार्टिंग विद हाइड्रोजियोलॉजी। तो सर ने जैसे बुक्स बता दिए, हम कुछ बुक्स अपलोड भी कर देंगे, आप वहां से रीड करना भी शुरू करो, एंड नोट्स से भी हम जाएंगे। ठीक है, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एनी अदर डाउट? किसी को कुछ पूछना है? एग्जाम रिलेटेड, पैटर्न रिलेटेड, क्लास रिलेटेड?
Okay. Okay, so moving on the syllabus. Just a minute, sir. Yes. See, make this class as interactive as you can, right? Don't just be passive listeners. Don't just be passive listeners. You are enrolled in a live class, right? So make the class lively. Okay, make the class lively. Go for interactions, answer the questions, or at least respond. Okay, अगर आप लोग कॅमेराज ऑन नहीं रख सकते, whatever your reasons might be, okay, तुमचे काहीही रिझन असू द्या, काही लोकांना कॅमेरा ऑन करायला प्रॉब्लेम असेल, काही लोकांना नसेल, ज्यांना नसेल दे कॅन कीप देअर कॅमेराज ऑन. ओके, कॅमेराज ऑन ठेवा. दॅट विल बी ग्रेट मोटिवेशन फॉर अस. ओके, इफ यू कॅन नॉट, right, if you cannot, just be interactive. Okay, be interactive with us. Interact, whatever we are asking, whatever we are whatever responses we are asking for, give the responses so that it won't be like we are talking to screens. Okay, it won't be like we are talking just to our computer screens. Okay, make us feel that we are talking to humans, right, not the computer screens. कभी कभी हमें ऐसा लगता है that we are psychopaths who are just talking to the screens, right? So don't let us feel like that. Just interact. Okay, just interact. All these videos will be available on the app itself. Okay, so it will be for your revision. You can watch it for any number of times till your examination. Okay, okay, continue, sir. And the most important thing कि एग्जाम की डेट अभी आई नहीं है, ठीक है. सो वी हैव इनफ टाइम. सिलेबस हो जाता है, डेट आगे पीछे हो जाती है, ठीक है, तो भी कोई इशू नहीं है, आप रिवीजन करते रह सकते हैं, ठीक है. तो ये एक प्लस पॉइंट है. तो एक जैसे भी नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम की डेट के बारे में, वो सबको पता चल ही जाएगा, या फिर हम अपलोड भी करेंगे नोटिफिकेशंस वगैरह. तो अभी एग्जाम की डेट आई नहीं. ओके, सो वी कैन जस्ट फोकस ऑन अपना प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं. आप मराठी पे भी काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है. एनीथिंग एल्स? हाँ, थोड़ा सा क्या है, देखो 6:30 का क्लास है मॉर्निंग में. आज पहला दिन है तो बहुत से लोग उड़ गए आ गए, ठीक है. कल से ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये डिक्रीज होने लगती है. बिकॉज क्या है, आप सीरियसली किसी चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पाते. आज नींद नहीं खुली है ना, वीडियोस मिलने वाले हैं तो आपके पास ये दूसरा रीजन है कि नहीं किया तो क्या होता है, वीडियो देख लेंगे जब कंफर्टेबल हो. तो ऐसा मत करिए. अगर आप प्रॉपर एक शेड्यूल बना लेते हो, एक प्लान बना लो, जिस प्लान से हम चलने वाले हैं 40-45 डेज में, तो इससे आपका एंटायर सिलेबस कवर हो जाता है 40 डेज में. अदरवाइज आप इतने सालों से पढ़ रहे हो, आपको भी पता है 40 दिन में आप कुछ नहीं करते, ठीक है, समय ऐसे ही निकल जाता है. तो एक प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए खुद के लिए. जैसे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं उसी हिसाब से आप अपनी स्टडी को भी प्लान करिए, है ना. रेगुलरिटी रखिए, तो एंटायर सिलेबस विद इन टाइम आपका कवर हो जाएगा. अदरवाइज आप पढ़ते रह जाएंगे, वीडियो भी पेंडिंग हो जाएंगे, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना. तो एक प्रॉपर शेड्यूल आप बना के बिल्कुल रेगुलर करिए. पॉसिबल है तो क्लास भी रेगुलर करिए, ठीक है. देन वी आर मूविंग ऑन दी सिलेबस नाउ, स्टार्टिंग विथ हाइड्रोजियोलॉजी, ठीक है. हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप बेड पे बैठकर मत क्लास करिए. प्रॉपर एक टेबल और कुर्सी अरेंज करके करिए, ठीक है. अदरवाइज 2-3 दिन में आप सोना शुरू कर दोगे और ये सब आपका वेस्ट हो जाएगा. ये एक ऑब्जर्वेशन है, हम इतने सालों से ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, हमें पता है क्या करते हैं बच्चे, ठीक है. और जितने बड़े बच्चे हैं उतने ज्यादा आलसी है. ओके, ठीक है, क्योंकि हर चीज हम कैजुअली लेते हैं. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विथ हाइड्रोजियोलॉजी. मेक हेडिंग. One second. ठीक है, तो इन दिस हाइड्रोजियोलॉजी पोर्शन सिलेबस एक पैराग्राफ का है, जिसमें हमें क्या दिया गया है बेसिकली कि अबाउट व्हाट इज हाइड्रोजियोलॉजी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स है, देन इफेक्ट्स है ग्राउंड वाटर पे. उसके बाद
हाइड्रोजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, जैसे पोरोसिटी, परमेबिलिटी, स्पेसिफिक यील्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद एक्विफर टाइप्स, ठीक है, डार्सी लॉ, देन फ्लोज, फ्लोज के बारे में है, उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह। एंड ये जो प्रॉपर्टीज है, ये महाराष्ट्र में पाए जाने वाले अलग अलग एक्विफर्स की प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में भी पूछा है ना। तो जब हम पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज को एक एक महाराष्ट्र के एक एक एरिया के एक्विफर के हिसाब से अरेंज करके भी पढ़ना है ना। बस इतना ही है। तो इसमें बहुत ज्यादा, जैसे टोड वगैरह आप रेफर करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में है, फ्लोज, इक्वेशंस है, डेरिवेशंस है, वो सब चीजों पे जाना ही नहीं है। ठीक है, आपने पेपर भी देखा है, 1 साल का पेपर हमारे पास एज अ सैंपल पेपर अवेलेबल है, उसमें भी बहुत डिटेल चीजें नहीं पूछी है, ग्रास बेसिक लेवल पे पूछे हैं। जैसे वो क्वेश्चन ही कर रहे हैं कि डार्सी लॉ की डेफिनेशन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे ही है। तो हम कई बार क्या होता है, बहुत एडवांस पढ़ने की कोशिश करते हैं और बेसिक क्वेश्चन आके उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई क्वेश्चन। सर यस, सर इंटायर सिलेबस जो रहेगा पूरा हाइड्रोलॉजी के बेसिस पे रहेगा, साथ ही साथ जो पैरामीटर्स रहेंगे वो थोड़ा फोकस करना है अपन को महाराष्ट्र के ऊपर, है ना, हाइड्रोलॉजी का। हाँ, बाकी सिलेबस तो पहले पूरा हाइड्रोलॉजी का ही रहेगा। पैरामीटर्स वगैरह तो सब कवर करेंगे पहले। उसके बाद जैसे क्या है, जैसे महाराष्ट्र का एक एक्विफर कंसिडर किया, तो उसको बोलेंगे कि ये एक्विफर दूसरे एक्विफर के कंपैरिजन में ज्यादा पोरस है, ज्यादा परमिएबल है, इसकी ट्रांसमिसिविटी क्या है, ऐसा वो कंपैरिजन करके भी हमें आखिरी आखिरी में देखना पड़ेगा, है ना। तो फॉर दैट थिंग पहले तो आपको व्हाट इज ट्रांसमिसिविटी, व्हाट इज परमिएबिलिटी, पोरोसिटी, ये तो पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर अपन वैल्यूज देके टेबल टेबल में जाएंगे, है ना। तो ये एक बिगर टास्क होता है, क्योंकि अपने को जब न्यूमेरिक वैल्यूज याद रखनी है, वो भी ढेर सारे एक्विफर्स की, इतने सारे रीजन्स की महाराष्ट्र के, तो वो एक्चुअली डिफिकल्ट पार्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन वो क्वेश्चंस जो करते हैं, हमने पेपर में देखे, वो कंपैरिजन बेस्ड करते हैं, तो हम लॉजिकली जा सकते हैं, क्योंकि हमें रीजन पता होते हैं कि भाई ये वाला रीजन है, यहाँ थोड़ा ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है, तो वहाँ की वाटर कंडीशंस कैसी है, ये वाला रीजन है, यहाँ अच्छी का एग्रीकल्चर होता है, तो यहाँ पानी का लेवल अच्छा होगा, तो हमें एक प्रॉपर आइडिया आ जाता है। ठीक, सो इन हाइड्रोलॉजी फर्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नाउ व्हाट इज साइकिल? एनीबॉडी? साइक्लिक चेंजेस। ओके, अब मतलब बेसिकली कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर, दैट इज नथिंग बट योर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, है ना। अब ये जैसे रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है ना, तो हमें उसके उगम स्थान पता होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गंगा का रिवर लेके चलते हैं, गंगा रिवर, तो गंगोत्री से निकलती है, फिर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ जाती है ना। फिर वहां से पानी कहाँ से आ रहा है, अब ये हमें नहीं पता, ना ही हम वहाँ कुछ रिसर्च कर पाते हैं प्रॉपर, क्योंकि वो रीजन्स वैसे नहीं है। ओके, अनस्टेबल रीजन्स है। सो बेसिकली ये जो वाटर रिसाइकलिंग है, दैट इज नथिंग बट योर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, the continuous circulation of water in nature is referred to as water cycle or hydrological। ठीक है, डेफिनेशन लेवल से जाना है, आप एक बार पेपर देखिए, आज हम अपलोड करेंगे। बेसिक होता है, छोटी छोटी चीजें होती है ना, तो एकदम बेसिक से चलिए, और हो सके उतना एडवांस भी आप कवर करके रखिए, ताकि हमेशा के लिए वो प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, इसलिए हम भी डेफिनेशन से जाएंगे, फिर धीरे धीरे उसमें
डिटेलिंग की तरफ बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स ऐसा एज सच फोकस पे नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना, हर एग्जाम पेपर में आ जाते हैं। एक फार्मूला बेस्ड होते हैं, एक दो वैल्यू गिवन होती है, बेसिक फार्मूले पे क्वेश्चन, ऐसे नॉर्मली दो तीन न्यूमेरिकल देखे जाते हैं। तो बेसिकली हम भी उसी लेवल पे दो तीन अगर न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है तो एक दो न्यूमेरिकल करने वाले फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, है ना। जैसे हमने स्पेसिफिक यील्ड किया तो उसका जब एक आधा न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं तो उससे होता क्या है, आपको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो पता चल जाता है, तो उससे एक बेटर आइडिया आता है मैथमेटिकल कंसेप्ट की वजह से, है ना। तो वो लेवल पे ही हम न्यूमेरिकल पे जाने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर। अब कंटिन्यूअस सर्कुलेशन मतलब क्या हो गया, बेसिकली वी हैव वन ग्लोबल हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसमें क्या होता है, बेसिकली दिस साइकिल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1, the atmospheric water system. Then surface water system, and subsurface water system. अच्छा, सबको मराठी समझती है क्या? कोई है क्या ऐसा जिसको मराठी नहीं समझेगी? समझती है सर। सगळ्यांना? हो सर। हो सर। एक कोई है इसमें ऐसा जिसे मराठी से कोई इशू हो? हाँ, तो हम बीच बीच में मराठी पे भी शिफ्ट करेंगे, है ना। बेसिकली हम हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों से चलेंगे, क्योंकि इंटरव्यू तो एकदम मराठी में होता है ना। हो सकता है आपको एक भी क्वेश्चन इंग्लिश में ना किया जाए, हिंदी में भी ना किया जाए, ये होता है ना। हमने पुराने लोगों से पूछा है तो उन्होंने बताया पूरा का पूरा मराठी में आपका इंटरव्यू रहेगा, है ना। तो कई बार समझ में ही नहीं आता है, कभी कभी कुछ कुछ वर्ड वो ऐसे यूज कर लेते हैं, है ना। तो जियोलॉजी में अपन वो मराठी वर्ड्स ध्यान नहीं देते, तो हम बीच बीच में उसका भी थोड़ा कुछ करेंगे, ठीक है। जैसे वो तो सर बंधारा जो हम है। हाँ, सर जो हम पूरा इंग्लिश में पढ़ रहे हैं जियोलॉजी, तो क्या वो मराठी तो में ये पेपर पूछेंगे के तो लिए वो word- नहीं, पूरा नहीं पूछते, ठीक है, लेकिन वो आपका नॉलेज देखते हैं कि और आप कैसे कुछ कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, कन्विंस करना पड़ता है ना हमें, बेसिकली वो हाँ। आपकी कन्विंसिंग पावर देखते हैं। तो हम इंग्लिश में तो पढ़ेंगे ऑब्वियसली, वो तो सब पेपर के लिए इशू हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में आने के बाद जब वो फिर आपका अवेयरनेस देखते हैं कि अब गांव के लोगों से बात करना है, जैसे आपका वेल इन्वेंटरी करना है, आपको अगर पर्टिकुलर एरिया के वेल इन्वेंटरी का डाटा कलेक्ट करना है, तो आपको एक गांव अलॉट हो जाएगा। वहां मान लो आपके पास 12-15 वेल दी गई है, तो आपको हर वेल पे जाना पड़ेगा। वेल किसी ना किसी की पर्सनल होती है ना। तो आप किसी के भी घर में घुस के किसी भी कुएं का एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको उन लोगों से बात करनी पड़ती है, कुछ लेटर्स दिखा के परमिशन लेनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि भाई हम सिर्फ सैंपल लेने वाले हैं, है ना। तो कभी कभी मोटर लगा के देखना पड़ता है, तो उनका मोटर भी यूज करना पड़ता है। तो ये सब चीजों के लिए उनसे बात करनी पड़ेगी, है ना। तर इथे आपल्याला मराठीत बोलावं लागेल, है ना। और कई बार छोटे मोटे जो फेमस चीजें होते हैं जैसे बंधारा वगैरह, जैसे अपन चेक डैम्स वगैरह यूज करते हैं इंग्लिश में, तो उसे बंधारा पोट बंधारा वगैरह कहते हैं, तो वैसे वर्ड्स भी वो यूज कर लेते हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा अपने को देखना हाँ। पड़ेगा, है ना, ताकि मतलब वहां पे जाके आप फंस ना जाओ, ठीक है। One second. ठीक है। तो ये ग्लोबल हाइड्रोलॉजिक साइकिल को हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया, है ना। एटमॉस्फेरिक वाटर सिस्टम मतलब क्या होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है
वाटर का। अब इसमें क्या होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। अब इसमें हो क्या रहा है, आपके पास H2O है जो कि लिक्विड स्टेट में रहेगा, इसका कन्वर्शन हो जाएगा वेपर स्टेट में, ये भी इसका ही कंपोजिशन H2 ही रहेगा, और सब ये गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। और हमारे पास H2O है जो कि सॉलिड फॉर्म में भी है, जैसे आइस हो गया, पोलर आइस, आइस कैप्स, ठीक है। तीनों स्टेट में हमको मिल रहा है। अब इसका जो कन्वर्शन है वही हमें देखना है बेसिकली इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो एटमॉस्फेरिक वाटर सिस्टम किसके साथ डील करेगा, जो भी एटमॉस्फेयर में हो रहा है ना, तो मोस्टली वेपर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। देन सरफेस वाटर सिस्टम मतलब देखो, जैसे एटमॉस्फेरिक वाटर सिस्टम में हम किसकी बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन की, ट्रांसपिरेशन की, इवेपो ट्रांसपिरेशन की, ये चीजें हो गई एटमॉस्फेरिक वाटर सिस्टम में। जब सरफेस वाटर सिस्टम पे बात करेंगे तो हम जो वाटर बॉडीज अवेलेबल एट द सरफेस है, जैसे रिवर हो गई, लेक हो गए, पॉन्ड्स हो गए, है ना, उसके बाद ओशंस हो गए, ये सब सरफेस पे अवेलेबल है, तो हम इनकी बात करेंगे। सब सरफेस वाटर सिस्टम में हम बिलो द सरफेस, ठीक है, मतलब वहां पे हम इनफिल्ट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है, पोरस स्ट्रेटास की बात करेंगे, है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करेंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की बात करेंगे। तो इस प्रकार से हमने बेसिकली साइकिल को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, नाउ मूविंग ऑन बेसिक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। तो डायग्राम में ही हम मैक्सिमम चीजों को कवर कर देंगे। हो गया आपका रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन। अब जितने भी सरफेस बॉडी है वहां से इवेपोरेशन होगा, सन, क्लाउड, again clouds, then rainfall, you get the precipitation, interception, water droplets, so groundwater, ठीक है। ड्रॉ कर लिए। सर रन ऑफ जे आहे ते सबसर्फेस मध्ये येणार की सरफेस वॉटर फ्लो मध्ये येणार? सरफेस, सरफेस रन ऑफ कहाँ पे होगा, सरफेस के ऊपर होगा ना। जैसे बारिश आ गई, बहुत ज्यादा बारिश आ गई, तो वो पानी बह रहा है, जो पानी बह जा रहा है दैट इज योर रन ऑफ, तो वो तो ऊपर ही रहेगा। तो अगर इसमें ही हम डिवीजन कर ले, मैं यहाँ लाइन डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक के लिए, ये हो गया आपका सरफेस के लिए, और इसके नीचे का, तो मतलब ये हो गया आपका सब सरफेस।
ये हो गया सरफेस वाला, और ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ठीक है। कैमरा ऑन नहीं किया तो भी चलता, हमें कोई इशू नहीं, थोड़ा सा बात करते रहिए, है ना, तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि आप जगह हो, सो तो नहीं, क्या चालू कर। ठीक है, और बता हाँ। रहा हूँ, शेड्यूल से चलिए, डेली का काम डेली करिए, बिल्कुल पेंडिंग मत रखिए। 2 4 10 दिन बाद आपको ऐसा हो जाएगा कि आपसे होता ही नहीं है फिर। ठीक है, इसलिए ऐसा मत करिए। हाँ, तो देखिए, अब स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस वाटर बॉडी से हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली सरफेस पे कौन सी वाटर बॉडीज अवेलेबल है हमारे पास? ठीक है, जो हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है वो सबसे पहले होता है हमारे पास रिवर, है ना। मेजोरिटी ऑफ द सिटीज जो बसती है वो क्या होता है, रिवर के आसपास बस जाती है, फिर वहीं से बढ़ने लगी, है ना। तो कई बार करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आता है कि ये नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, जैसे दिल्ली, बताओ। यमुना। 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 हाँ, ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो पहले डेवलपमेंट जो होता था वो ऐसा ही होता था, रिवर होती थी, रिवर के आसपास पे धीरे धीरे लोग बसने लगते हैं, फिर वहां से वो बड़ा हो गया, तो सिटीज बन गए इस तरह से। ठीक है, तो रिवर हो गया, देन हमारे पास लेक्स है ना, देन पॉन्ड्स है। पॉन्ड छोटे छोटे होते हैं, लेक उससे थोड़े बड़े होते हैं, है ना। उसके बाद फिर हमने आर्टिफिशियल लेक्स बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर हमने रिवर्स को रोकना शुरू कर दिया, हमने डैम्स बना लिए। ठीक है, और फिर उसी का इस्तेमाल करके फिर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा के हम वाटर सप्लाई दे रहे हैं। तो ये सारा सरफेस वाटर वाटर जो है वो सरफेस पे अवेलेबल है ना। तो अब इसको चेंज होना है तो सबसे पहले किसका रोल आता है? सन का। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज सन, और उसका हीटिंग इफेक्ट बेसिकली साइकिल को शुरू करने के लिए, जैसे हमको मोटर को शुरू करना है तो इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल शुरू ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ सन से होगा। ठीक है, तो ये ड्राइविंग फैक्टर है, क्योंकि अगर सनलाइट ही नहीं है तो ये साइकिल में भी आपको इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। तो ऐसे भी रीजन्स है जहाँ प्रॉपर सनलाइट ही नहीं आता, जैसे नॉर्वे वगैरह रीजन्स हो गए, है ना। तो वहां पे भी होता है कन्वर्शन, लेकिन अलग फैक्टर से होता है, रेट वगैरह बदल जाते हैं, है ना। तो ये सब इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, वाटर बजट, है ना, कि भाई कितना वाटर सरफेस पे अवेलेबल है, कितना इवेपोरेट हो रहा है, कितना वापस सरफेस पे मतलब कन्वर्ट होने के बाद लिक्विड बन के एज अ इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल वापस आता है। ये सब हम उसमें चेक करते हैं, वाटर बजट बोलते हैं उसमें। ठीक है, तो सन का हीटिंग इफेक्ट जहाँ ज्यादा होगा ऑब्वियसली वहां इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? बतानी पड़ेगी डेफिनेशन, कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फॉर्मेट, वेपर स्टेट। ठीक है, सो वेपर स्टेट में आ गया वाटर। अब ये वेपर्स क्या होंगे? हॉट होंगे। ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर जब वो गेन किया, जैसे एक सिंपल बताता हूँ इवेपोरेशन के बारे में, मैं गारंटी से बता सकता हूँ 99% लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, हम टेस्ट करते हैं कि आपको इवेपोरेशन कितना पता है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक पॉट ले लिया, इसमें मैंने पानी ले लिया। ठीक है, इसको हमने अभी बर्नर पे रख दिया और हीटिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे हमने शुरू किया पहले टेम्परेचर बहुत कम था और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो अब ये जो वाटर है, ये एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इसका इवेपोरेशन शुरू होगा?
100 डिग्री 100 डिग्री पे? 100 डिग्री पे। 100 डिग्री पे पक्का? ठीक है। अब मुझे बताओ कि जैसे टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, तो क्या पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा इसमें? नहीं। बचता है सर। हाँ, बचेगा। फिर इसने तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि 100 डिग्री पे तो वाटर बॉईल हो जाता है, वेपर में आ जाता है, फिर क्यों बचेगा? सर देयर इज अ वन हीट दैट वी कॉल एज लेटेंट हीट, दैट इज हिडन हीट इन वाटर। यस, परफेक्ट। लैटेंट हीट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन? बेसिकली इवेपोरेशन 100 डिग्री पे नहीं, 100 डिग्री से पहले होता है। ठीक है, धोखा हुआ है आपके साथ। इवेपोरेशन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, आपका वेपर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, धीरे 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 धीरे। अब ये वेपराइजेशन, ये वेपर का कन्वर्शन कब तक चलता रहेगा? जब तक वो 100 डिग्री पे नहीं पहुंच जाता, क्योंकि 100 के बाद तो वो बॉइल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज इवेपोरेशन? एक्चुअली इवेपोरेशन ऑकर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसलिए देखो, कभी छोटे बच्चे सबके घर में होंगे, है ना? तो आपने उसे दूध की बोतल वगैरह उबाली होंगी क्या कभी? या आपने देखा होगा दीदी को, मम्मी को, किसी ना किसी को। ठीक है, तो जैसे आप वो दूध की बोतल उबालो यहाँ पे, ठीक, तो ये जो मटेरियल से बनता है, कोई पॉलीप्रोपाइलिन वगैरह से बनता है, इसका लगभग 120 to 125 डिग्री सेल्सियस का इसका ये होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। तो इस बॉटल को आप बिंदास उबालो जब तक पानी है। ठीक है, ऐसा अपने को डर लगता है कि अरे यार ज्यादा गर्म ना कर दे, कहीं बॉटल पिघल ना जाए। ठीक है, और आप बिल्कुल टेंशन मत लो। पानी जब तक अवेलेबल है, समझ लो कि वो टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुंचा ही नहीं है, और आप बॉटल को कितनी भी देर बिंदास उबाल सकते हो, क्योंकि उसका तो मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री देकर रखा है। ठीक है, तो दैट इज इवेपोरेशन। कई बार ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आते हैं, मतलब बेसिक, ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। इवेपोरेशन ऑकर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इवेपोरेशन ऑकर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखना बिलो 100 पे ही इवेपोरेशन आ जाता है। ठीक है, फिर 100 के बाद आपको कंप्लीटली वेपर्स ही मिलेंगे। सो हम जो हीट दे रहे थे, तो वो अभी तक जा कहाँ रही थी? ठीक है, जैसे हमने हीट करना शुरू कर दिया, तो एकदम से वो मेल्ट हो जाएगा क्या? नहीं। एकदम से वो वेपर में आएगा कि नहीं? उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तब तक तो हमने हीट सप्लाई कर लिया। मान लो आप 10 मिनट से पानी को गर्म कर रहे हैं, लेकिन पानी में आपको कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखा। तो ये 10 मिनट तक हमने जो हीट दिया वो कहाँ गया? वो स्टोर हो जाता है एज अ इन फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट। समझ में आ रहा है? यही हीट। उसी प्रकार जैसे आपने आइस ले लिया, उसको गर्म कर रहे हो, तो आइस का वाटर में कन्वर्सन शुरू हो जाता है ना? लेकिन एकदम से हो जाता है क्या? नहीं। तो जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो हीट कहा जा रही है, तो वो लेटेंट हीट हम बोलते हैं, हिडन हीट बेसिकली। ठीक है, सो इवेपोरेशन हो गया। इट इज बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द सन। देन जैसे वाटर वेपर से वो गर्म है, ठीक है, अब जो गर्म मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल जैसे वेपर गर्म है, तो क्या होता है? लेस डेंस बन जाते हैं, है ना? अब डेंसिटी कम होगी जिसकी, वो क्या होगा? ऊपर ऊपर बढ़ेगा, है ना? कब तक बढ़ेगा? जब तक उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। इसलिए आप देखो, कभी भी आपके घर में किचन में जो एग्जॉस्ट फैन लगता है, उसकी खिड़की देखना हमेशा ऊपर ही बनाई जाएगी। नीचे गैस के आजू बाजू भी तो बना सकते थे, लेकिन कभी नहीं बनाते, क्योंकि जो गर्म एयर रहेगी वो तो ऊपर जाने वाली है, तो उसे बाहर निकलना है तो हमें एग्जॉस्ट ऊपर लगाने पड़ेंगे। इसलिए एग्जॉस्ट की खिड़की आपके ऊपर है। तो डेंसिटी बेसिकली डिक्रीज हो गई, दैट्स व्हाई हॉट एयर ऊपर ऊपर मूव करेगी। ऊपर मूव करेगी तो कहाँ तक मूव करेगी? जब तक उसका एक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो ये वेपर एक जगह एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, एंड नाउ दे विल बी कन्वर्टेड इनटू क्लाउड्स। ठीक है, तो यहाँ जैसे वो एक्युमुलेट होने लगेंगे, तो अब गैसेस स्टेट में आपको पता है, ठीक है, गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत, एटम्स या मॉलिक्यूल्स आप कंसिडर करो, बहुत दूर दूर होते हैं, बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हाई काइनेटिक एनर्जी से मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है। यही लिक्विड स्टेट में जब आएंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे। इंटरमोलिकुलर स्पेस गैसेस में सबसे ज्यादा है, लिक्विड्स में कम हो जाएगा, सॉलिड्स में एकदम कम, ना के बराबर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे, तो धीरे धीरे इनका क्या होता है? बेसिकली जब मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे,
मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम होने लगेगी इनकी, ठीक है, और इनका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्लाउड्स बनने के साथ साथ कंडेंसेशन शुरू हो जाए। तो कंडेंसेशन बेसिकली क्या है, एक प्रकार से कूलिंग हो गया। मतलब अब जो टेम्परेचर बढ़ चुका था वो वेपर फॉर्मेट में आ गए थे, अब कूलिंग होने लगा है, टेम्परेचर कम होने लगा है, तो कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, कंडेंसेशन होने लगेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे मॉलिक्यूल पास में आते जाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू करेंगे तो ग्रेविटी उसे खींच लेगी, और इस वजह से वो एज अ रेनफॉल नीचे आना शुरू कर देंगे, है ना। पहले तो एयर करंट्स भी है यहाँ पे, तो क्लाउड्स बनेंगे एंड एयर करंट्स की वजह से वो क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे इधर उधर, ठीक है। जैसे आपने देखा है हमारे इधर मानसून, है ना, मानसून क्या है हमारे पास, जैसे आप देखोगे कि अरेबियन सी जो है ना, अब ये जो ओपन वाटर है, जितना वाटर ओपन रहेगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि सरफेस एक्सपोजर भी तो चाहिए। अगर पानी है लेकिन ढका हुआ है तो इवेपोरेशन कम रहेगा, लेकिन पानी डायरेक्टली अवेलेबल है इवेपोरेशन के लिए, सन के हीटिंग के लिए, तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है। तो अरेबियन सी के ऊपर इवेपोरेशन ज्यादा रहता है एज कम्पेयर विद दी हमारा जो लैंडवार्ड एरिया है इंडिया का, ठीक है। तो इवेपोरेशन जहाँ ज्यादा होगा तो वहाँ ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे, और वाटर एयर करंट्स की वजह से क्या होता है, जैसे ही वो क्लाउड्स बनते हैं वो धीरे धीरे मूव करने शुरू कर देते हैं। अब इनका मूवमेंट होते होते वो क्लाउड्स हेवी होते हैं, प्रेसिपिटेट होने लगते हैं, वाटर बनने लगता है, और ये जब पहुंचते हैं तो लगभग 1 जून के आसपास हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे आ जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं केरला वगैरह में 1 जून को प्रॉपरली मानसून आपने को देखने को मिलता है, 1 जून, 3 जून, 4 जून अप्रोक्सीमेटली हमें मिलता है। और फिर वहां से इधर क्लाउड्स मूव करते हैं, ठीक है, ये सीधे सीधे जाते हैं हिमालय तक। अब हिमालय रोक देता है, अदरवाइज वो निकल जाते हैं, ठीक है, और वो रोक देता है, इस वजह से फिर वो इंडिया के ऊपर क्लाउड्स रुकना शुरू हो जाते हैं, और फिर हमें रेनफॉल होता है। तो इसलिए राजस्थान वाला हिस्सा कम बारिश वाला हो जाता है, और इधर महाराष्ट्र का भी ये थोड़ा सा मराठवाला ईस्टर्न साइड का हिस्सा भी थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, ठीक है। तो वो देखेंगे रेनफॉल में बाद में। सो कंडेंसेशन होगा और वाटर ड्रॉपलेट्स बन के वो नीचे आएंगे, इसी को हमने क्या बोल दिया, प्रेसिपिटेशन, है ना। अब रेनफॉल को मेजर करने के लिए हमारे पास रेन गॉज होता है, देखा होगा आपने, सुना होगा इंस्ट्रूमेंट का। अब रेनफॉल को हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, एनीबडी? MM³ मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर में, है ना। आज 50 मिलीमीटर बारिश हुई, देखना ना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। 150 mm बारिश हो गई इस सीजन में, इस प्रकार 100 मिलीमीटर में। बेसिकली रेनगॉज जैसा गिलास जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें जैसे मान लो 1 घंटा बारिश हुई तो 1 घंटे में कितना पानी जमा हो गया, है ना, तो वो में आता है, तो उससे अपने को पता चल जाता है, ठीक है, कि इतना मिलीमीटर बारिश हुआ, लाइक दिस, 1 मिनट में कितना, 1 घंटे में कितना, इस प्रकार से। तो आप गूगल कर लेना, तो आपको इंस्ट्रूमेंट वगैरह दिख जाएगा। सो फिर ये प्रेसिपिटेशन होगा तो ये वाटर घूम फिर के फिल्टर होके वापस कहाँ आ गया, फिर आ जाएगा सरफेस पे। अब जैसे सरफेस पे रेनफॉल होगा तो सारा का सारी पानी कहाँ जाता है, इमीडिएटली पहले तो बहने लग जाता है जहां स्लोप होगा, है ना, तो उसी को जो बहने वाला पानी है दैट इज नथिंग बट योर रन ऑफ, करेक्ट, या रन ऑफ। देन अब इस रन ऑफ को ही रोकना बेसिकली हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का काम है ना। तो इसके लिए फिर हम आर्टिफिशियल रिचार्ज टेक्निक्स वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि रन ऑफ हो जाएगा तो इनफिल्ट्रेशन होगा नहीं, है ना। एंड वे हमें बेसिकली ध्यान देना है इनफिल्ट्रेशन। तो जितना पानी सरफेस पे रुकेगा उतना इनफिल्ट्रेशन बढ़ेगा, इनफिल्ट्रेशन बढ़ेगा तो ये बेसिकली क्या करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज व्हाट वी आर डूइंग, ग्राउंड वाटर का यूज बहुत बढ़ गया है, एक्सेसिव यूज है, ठीक। सो दैट्स व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन, ये सीपेज है बेसिकली, धीरे धीरे वाटर जो है वो पर्कुलेट करेगा, ठीक है, और बेसिकली ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, ठीक है। नाउ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है, ट्रांसपिरेशन मतलब बेसिकली अब ये पेड़ है, प्लांट के जो रूट्स है, ये रूट्स को रूट हेयर होते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो सॉइल का वाटर है, सॉइल में जो वाटर है, वाटर प्रेजेंट इन पोर स्पेसेस, ये पोर स्पेसेस के पानी को
तो ये रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स के थ्रू, सॉरी रूट हेयर ऑब्जॉर्ब करते हैं, एंड रूट हेयर के थ्रू ये रूट्स में आएगा, रूट्स के थ्रू प्लांट में आएगा। देन अपने पास जाइलम एंड फ्लोएम का एक नेटवर्क होता है, एक का वाटर ट्रांसपोर्ट का काम है, एक का फूड ट्रांसपोर्ट का काम है। यहाँ से ये पानी पूरे पेड़ में पहुंचेगा और फाइनली कहाँ तक आएगा, लीफ तक आएगा। ठीक है, ये टॉप मोस्ट पार्ट हो गया लीफ मतलब। और लीफ जो कि सनलाइट को एक्सपोज रहेगा, यहाँ से इसका इवेपोरेशन हो, ये पानी का मतलब सॉइल का पानी प्लांट के लीव्स के थ्रू इवेपोरेट हो गया। इस प्रोसेस को हमने बोल दिया है ट्रांसपिरेशन, या समटाइम्स इसी प्रोसेस को हम इवेपो ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लो, इवेपो ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, दोनों वर्ड है तो दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, मैं डिक्टेट कर देता हूँ आपको, बाकी तो आपको सब पता ही है और नोट्स में भी हम दे रखे हैं। Transpiration. What is transpiration? Evaporation through plant leaves. Sorry. Evaporation through plant leaves. Evaporation through plant leaves. ट्रांसपिरेशन हो गया। इवेपो ट्रांसपिरेशन को कैसे लिखेंगे? Evaporation directly from soil and vegetation surface and transpiration through plant leaves. ठीक है, मतलब बेसिकली व्हाट इज इवेपोट्रांसपिरेशन, ये कलेक्टिव टर्म यूज किया गया है। ठीक है, ये कलेक्टिव टर्म यूज किया गया है जिसमें प्लांट के थ्रू होने वाला इवेपोरेशन, वाटर से डायरेक्ट होने वाला इवेपोरेशन, और अदर मतलब सिर्फ लीफ से नहीं बाकी पार्ट से भी हो सकता है समटाइम्स, उसको भी कंसिडर किया गया है। तो ये पूरा कलेक्टिव टर्म है, दैट इज इवेपोट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन बोलेंगे तो वो सिर्फ प्लांट लीव्स के थ्रू होने वाले इवेपोरेशन को बोला गया है। करेक्ट? एनी डाउट अप टू दिस? सर No, इंटरसेप्शन क्या है? यस, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन, अच्छा ठीक है। इंटरसेप्शन मतलब क्या है, कई बार हमारा जो साइकिल है चल रहा है वो इंटरसेप्ट भी हो जाता है ना। मतलब मान लो प्रेसिपिटेट होके वाटर सरफेस पे आ गया, ठीक है, रेनफॉल के थ्रू, है ना, और ये वाटर अवेलेबल है, लेकिन फिर से इसका इवेपोरेशन हो गया। इनफिल्ट्रेशन होना चाहिए था क्योंकि ये एक बार घूम के आया है ना, लेकिन ये मतलब इसका इनफिल्ट्रेशन होने से पहले ये फिर से इवेपोरेट होने लग गया। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, इसलिए वो वर्ड मैंने डाला है इंटरसेप्शन। तो ये सारे कंडीशंस को अपन मेजर करते हैं और इससे हिसाब से फिर अपन वाटर बजट देते हैं कि कितना पानी है अवेलेबल, कितना इवेपोरेट होता है, कितना कन्वर्ट होके आ जाता है, कितना वापस चला जाता है, ठीक है, कितना लॉस हो जाता है, जो भी है ये सारी सिस्टम वाटर बजट्स में आती है। क्लियर है अप टू दिस? अब यहाँ पे हमने सिस्टम में एक वर्ड यूज किया गया था, ठीक है, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिक सिस्टमेटिक? हाइड्रोलॉजिक
सिस्टम, क्योंकि कई बार होता है, जैसे हमने बोला एटमॉस्फेरिक सिस्टम, सरफेस वाटर सिस्टम, सब सरफेस वाटर सिस्टम, है ना, ये सिस्टम क्या है भाई? तो इसको भी अपने को समझना पड़ेगा, व्हाट इज सिस्टम एक्चुअली, और स्ट्रक्चर और वॉल्यूम इन स्पेस surrounded by a boundary that accept water and other inputs. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन फॉर हाइड्रोलॉजिक सिस्टम। मतलब बेसिकली साइकिल में क्या है, हम सिर्फ कन्वर्शन की बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज, मतलब कहाँ से क्या कन्वर्शन हो रहा है और उस प्रोसेस को हम बोल क्या रहे हैं, हमने सिर्फ इतने चीज पे फोकस किया है ना। हाइड्रोलॉजिक सिस्टम मतलब एक्चुअली उसका अकाउंट है ना, मतलब अब यहाँ पे हम बेसिकली वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो लिक्विड टू वेपर आ गया, इतने वॉल्यूम जो है वेपर से इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फॉर्म फॉर्म हो गया, पर्टिकुलरली इन बाउंड्री, मतलब बाउंड्री तो देनी पड़ेगी, है ना, अदरवाइज हम काउंटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि एरिया तो बहुत बड़े बड़े थे, तो हमें पहले एक बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी, इतने एरिया पे इन विद इन इतने टाइम में इतना वॉल्यूम फॉर्म हो गया, है ना, इसलिए बाउंड्री वर्ड डाला गया, बाउंड्री दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, अदरवाइज तो हमारे पास तो सिर्फ इन्फिनिट हो जाएगा। तो इतने पर्टिकुलर बाउंड्री में, इतने पर्टिकुलर रीजन में, एरिया में इतना इनपुट आया, है ना, वो उसका जो मेजरमेंट है, काउंटिंग है, स्ट्रक्चर है, दैट इज नथिंग बट योर हाइड्रोलॉजिक सिस्टम, है ना। तो फिर हम देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक सिस्टम में कितना वॉल्यूम आ गया, सरफेस सिस्टम पे कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल था, और उतने वाटर में से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो इनफिल्ट्रेट हो गया। समझ में आया व्हाई वी नीड टू डिफाइन द वर्ड सिस्टम हियर? बेसिकली वॉल्यूम अकाउंट है, ठीक, एक्चुअल कैलकुलेशंस के लिए तो हमें यही लगेगा, ये ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें तो समझता भी नहीं। तो जब वॉल्यूम की बात करेंगे तब हमें एक्चुअल में आंकड़ा मिलेगा, दैट इज हाइड्रोलॉजिक सिस्टम। एंड देन एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जो बार बार यूज होने वाला है, ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन्स, इसी को मैं ऑब्लिक डाल देता हूँ, कैचमेंट्स, ऑब्लिक वाटरशेड। Basically, these are three synonymous terms that refer to the topographic area that collect and discharge surface stream flows through the outlet। ठीक है, बेसिकली ये सिनोनिमस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है, जो हम इनको जब बेसिकली इनको ये इनका जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम उसमें भी डिफरेंशिएट भी कर देंगे, ठीक है। इन प्रिलिमिनरी लेवल तीनों का काम एक ही है, कैचमेंट भी वाटर कलेक्ट करेगा, वाटरशेड भी वाटर कलेक्ट करेगा, ड्रेनेज बेसिन भी वही काम करता है। सो दीज आर थ्री सिनोनिमस टर्म। तो टोपोग्राफिक एरिया, व्हाट इज टोपोग्राफी, एनीबॉडी, व्हाट इज टोपोग्राफी है? जियोग्राफिक एरिया। ज्योग्राफिक एरिया बोलो,
है ना, या हाँ सरफेस फीचर्स हो गया, जैसे माउंटेन है, कहीं पे डिप्रेशन है, ठीक है, दैट इज टोपोग्राफिक एरिया। तो ये पर्टिकुलर एरिया पे कितना वाटर कलेक्ट हो रहा है और कितना वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ जमा था तो बह गया, दैट इज डिस्चार्ज, और डिप्रेशन था तो कितना कलेक्ट हो गया, कलेक्शन, है ना। या फिर स्ट्रीम है, स्ट्रीम के थ्रू, या आउटलेट है, इनलेट है, उसके हिसाब से। दैट इज नथिंग बट योर ड्रेनेज बेसिन, कैचमेंट और वाटरशेड। क्लियर? So this is basically about the hydrological side. Okay, any doubt up to this? Okay then. So आज हम यही रुकने वाले हैं, ठीक है। आज आधा घंटा तो हमारा समझने में गया सारी चीजों को, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। आज हमने एक ही टॉपिक कवर किया है, दैट इज हाइड्रोलॉजिकल साइड। अभी आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, मैं ग्रुप में भी अपलोड करूंगा और ऐप में भी अवेलेबल होगा, ठीक है। वीडियो रात तक हो पाएगा, जैसे हमने 24 आवर्स का टाइम दिया है आपको, तब तक हो जाएगा, क्योंकि इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, देन अपलोडिंग के लिए प्रॉपर इंटरनेट वगैरह लगता है ना। तो वो सारी चीजों में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए आपको सुबह का वीडियो रात तक मिल जाएगा, या मोस्ट प्रोबेबली कल दूसरे दिन तो मिल ही जाएगा, है ना। ऐप के थ्रू आप कितनी भी बार देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप खुद के भी नोट्स बनाइए, बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे, मैं अभी आपको टोड अपलोड कर देता हूँ, तो आप उससे भी पढ़िए, एक्स्ट्रा चीजें भी आप ऐड कर सकते हो, तो करते रहिए, पढ़ने के लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर कोई डाउट रहे तो आप वैसे भी पूछ सकते हो, आप ग्रुप पे भी मैसेजेस कर सकते हो, पर्सनली भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, कोई ना कोई रिप्लाई करेगा। एनी अदर थिंग? तो डेली अपना यही टाइमिंग पे क्लास चलने वाला है, किसी किसी को टाइमिंग का इशू तो नहीं है। इशू हो भी जाता है तो कोई कर नहीं सकता है, मेजोरिटी यहाँ लोग जो है वो वर्किंग है,